Hello, everyone, and welcome to this Options Talk edition 22. We hope you liked the Options Talk last week, and most of the views which were given were correct. And in fact, ITC behaved exactly as per the analysis which was done. And this, let me repeat one thing which we have also repeated earlier. This is not about giving calls or trading calls which you can just trade blindly. This is all about how analysis can be done, needs to be done. So I request every one of you to go through your own charts and decide for yourself. There's no point in following someone blindly just because I said buy above this or this is a stop loss and then crying that the stop loss has been hit. That is not the point. First of all, you have to build your own conviction that this trade is likely to work well, and then take it, and then do your own position sizing and money management. Just because maybe in the last 3 4 weeks most of the calls which have been discussed here have worked well doesn't mean that you should go all in with your full money, especially for small trading accounts, and trade big. That is not the case, because this is not possible that every time it will work well. Who knows, the next failure will be round the corner. So that is a very big caution. In fact, it's a warning for everyone. Don't trade blindly. Do your own diligence and do your own money management and trade accordingly. So coming to the week's review, let's get to charts. I had also given a caution on VIX. Why I had given a caution was this. This is a 200. I mean, although VIX had given a double top buy, it had closed about 24. People were surprised why I am started cautioning on VIX last Sunday. First of all, VIX was going up ahead of the event, which was the US elections. So typically, once the event is over, VIX cools off, and no better level than the 200 DMA. So VIX cooled off from there. So that was a place from where VIX had cooled off. What happens now? Of course, it maybe now that the official results are also declared, it might go down further. And if it goes below 17, then that's the end of volatility for the time being. Because you might remember last, I think this was 3 weeks back when I talked about a pattern retest or a double bottom near 17. So if 17 gets broken on VIX, then that is the end of volatility for the time being. So you can relax after that. But of course, 17 remains a level to be watched out for. Other things, I had also said Bank Nifty. I had given justification why it is very bullish. It had just done a retest of the 200-day moving average. After that, it has gone up like crazy, and I think it was up almost 12 or 13% last week, which is quite a lot for Bank Nifty. In a week, 13% is huge. So this was what has happened last week. Why I am cautioning now, that is something which now if you see the chart of Nifty, again it has given a good breakout above the in fact the anchor breakout, and everything is looking very bullish for the timing on a weekend charts. But if you look at this Bank Nifty chart, I would be cautious here. Why? Because this low in March 2019, after the first leg of the COVID fall, no, this was before the COVID fall. In fact, this is 19, sorry, this is 2019. This was 2020. So this low was near, if you can see on the left right hand side, this is near 26,700. Okay, it has crossed slightly. But if Bank Nifty cannot decidedly stay above 26,800, then there will be a problem. If it starts trading below 26,600, 26,500 again, that means there might be weakness in the short term. I am not talking about long-term charts. We are talking about only charts for the coming week. So that's why keep an eye on 26,600, 26,700 on the Bank Nifty. This is a spot chart. I'm taking one chart one by one. Similarly, on the 12,300 call, which is the monthly call, everyone who has been following me on Twitter are well aware that I always look on the left-hand side of the chart, and if there is a resistance from where there has been a substantial decline, for example, this 12,200 call, this was in October 9th to 12th. It had gone all the way to 244. From 244, it came to 70. So it is almost more than one third. And now it is again back to that level, near 244, 245. So 12,200 call, decisively above 250. I mean, needs to trade and maintain above 250 for Nifty to remain bullish. Similarly, the 12,300 call, that is also approaching this resistance where this high is 181. Friday high is also near that. So this high, and after that, the next high, which is 210.
So I won't be surprised if Nifty reacts now, for the simple reason that even if you do the analysis on the breadth of Nifty, all sectors is above 95. All sectors is, I mean, the complete market. Breadth of Bank Nifty has been 100 for the last couple of days. Breadth of Nifty Private Bank also is about 95. So breadth is overbought. Market is overstretched. The big good news for the market, for maybe because of which it had rallied, is out of the way. So even if there is in fact, people are talking about the crazy run in on SGX Nifty on Friday night. I think it crossed 12,350. Fine. So if it opens there, I will be very surprised if it sustains and goes higher. So be cautious on fresh longs and trail your existing longs. That is the key thing this week. Coming to a couple of charts for the current week. Of course, this TCS call has not yet performed. In fact, it did go on one day to 84, 85, which remains a resistance. And still the chart is looking good, the same 2700 call. So again, it might go towards 85. If it crosses above that, you can see maybe 120. And so after that, it needs to be trailed. So TCS might be one of the performers this week. That is just my view. One chart which is looking bearish on for me is Lupin. Lupin has given a anchor column, bearish anchor column from 19 to 30th October. After that, a pullback, and the next double bottom sell, which will be a close below 908, can take it to this trend line, which is near 893. Now, why is 893 important? That you will see on the OHLC chart. That is a 200-day moving average. This is exactly, I mean, at 890, that is a big coincidence. So below 908, Lupin can go towards 890, 895. And this is also confirmed from the 920 put, which is sort of at the money. If you see this chart, this is a pattern retest where it has taken support near the low is 23. Now it has given a double top buy. So if this continues, maybe right now it is the price is 36. It can go towards maybe 49 or even 54. So Lupin, TCS long, Lupin short. And another trade which I'm looking at is Z Telefilms, which on the option chart, I'll not, this is a 3% chart, but since the data points are less, I'll open the 1% chart. So if this rises now further above 12, this has the potential because Z on the small, I mean, short-term charts started going up. Now the results are also out of the way. So as long as it is above 180, 185 on the spot or futures, and if this call goes above 12, it can go towards 15, 16. It's a small trade, but worth it because who knows, it can go up further also. So these are my observations from this week. And coming now to the second part of the show, we don't have Raghunath this week because he has some big net broadband problems since morning, and he has not been able to access his, this webinar at all. But we have another guest, a surprise guest. Everyone of you knows him from Twitter, and he is quite well known on Twitter, and he has been using point and figure charts for more than 10 years now on a consistent basis. In fact, he's one of the oldest users of TradePoint. That also I can say. And he has a very unique way of analyzing the market every single day. He takes not more than half an hour to 45 minutes every evening. But if you devote that half an hour to 45 minutes every evening, what can be achieved? Everyone knows him, his charts on Twitter. And without any delay, let me invite Raju Ranjan. Raju, welcome, Raju. I'll make you the presenter, and you can show your charts now. थैंक यू सर. हेलो प्रेजेंटर बना दिया तुमको अभी. अच्छा अच्छा, पहले सबको ये बताओ, आप ये तुम्हारा जो टक टक इंडिकेटर है जो हम हमेशा उससे बात करते हैं ऑफिस में, और टक टक इंडिकेटर भी बताओ, ये क्या है एग्जैक्टली, क्या करते हो तुम रोज? ये सर एवरी डे जो निफ्टी 500 के जितने भी चार्ट्स जो है एक एक करके देखते हैं, और उसका हम थोड़ा प्रोसेस आज आपको हम बताएंगे कि कैसे हम देखते हैं, और मेरा जो एनालिसिस का जो प्रोसेस रहेगा उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्टर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स सबको मालूम है, और उसमें हम जो सेक्टर मैट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं. यहाँ मेरा स्क्रीन आपको शो हो रहा है ना? हाँ, दिख रहा है. सो सेक्टर मैट्रिक्स में स्कैन करते हैं,
अब इससे ओके आइडिया लग जाता है कि पूरे सेक्टर में कौन से सेक्टर कैसा बिहेव कर रहा है। इसके साथ ओके साथ इस टेबल से क्या मालूम चलता है कि जो X% यहाँ जो आपको दिख रहा है ये X% और DT% ब्रेथ, सो एवरी हम्म सेक्टर का एक क्लिक में मालूम चल जाता है हमको कि आगे क्या हो रहा है। हाँ अभी जब एक बार स्कैन, और ये जो स्कोर जो आपको दिख रहा है सबसे, ये जो 2, -1 और 0, सो 2 हाँ अगर स्कोर है यानी बुलिश है, जो सिंपल डबल टॉप बाई है, अगर हम सिंपल एनालिसिस में करें तो। -1 जो है वो इसका मतलब क्या है कि डबल टॉप बाई नहीं है। करेक्ट, वो स्कोरिंग का एक पूरा मिनट हम बता देंगे। एक मिनट राजू, पहले ये सेक्टर मैट्रिक्स कहाँ से ओपन किया? मैट्रिक्स से ना? मैट्रिक्स में गए और हाँ हाँ समझ सेक्टर गया, ठीक है। मैट्रिक्स, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अब आप सबसे हाँ पहले सर यहाँ अगर हम पहले X% ब्रेथ को देखो, हाँ, उसको सो सॉर्ट किया, वो कॉलम को सॉर्ट किया। स्टार्ट किया। सो आप देखिए हाँ 50, 53, 60, 73, 80 इस तरह से ब्रेथ का वैल्यू दिखा रहा है। जो हाँ नीचे में जो है 100, 100 जो है ये निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विस और प्राइवेट बैंक, करेक्ट। ठीक है। डीटी, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी जो है सेक्टर वाइज पूरी तरह से ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं क्या कि ऑल सेक्टर जो है ओवरसोल्ड में गया है। 50, हाँ 53, 60 है, यानी अभी भी ये स्कोप है। कुछ सेक्टर और का चलेगा। साथ में करेक्ट DT% हाँ जो इंडिकेट क्या करता है, अभी X% जो इंडिकेट करता है वो मालूम है कि यहाँ की यानी कितने नंबर ऑफ ये कितने सेक्टर जो है, सो हम्म कॉलम ऑफ X में है, करेक्ट। और करेक्ट। DT% दिखाता है कि यहाँ की उस सेक्टर के कितने जो स्टॉक्स जो है वो डबल टॉप बाई में है, यानी परसेंटेज। बरा, बराबर। सो DT% ये 90%, 85, 80 और 73 है। अब इसको हम हम्म शॉर्ट किए तो आप देखो 23, 40%, 50, यानी अगर यहां तक भी अगर आप देखो नंबर ऑफ सेक्टर, तो अभी भी इसमें स्कोप है अप जाने का, या जिधर भी ओके अब अप या डाउन, यानी इसका मतलब ये नहीं यानी ट्रेंडिंग है इधर। सो हम करेक्ट। सबसे पहले ये समझ में आ गया कि हाँ कि हम ब्रेथ जो है अभी भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जोन नहीं है। सो अकॉर्डिंगली हम जाएंगे। अब यहाँ पे 0 जो दिखा रहा है इसका मतलब ये सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल है फॉर्मेशन। हाँ राइट 2, राइट। 2 अच्छा जो मेरे को दिखा एक रहा चीज है बताओ, इसका मतलब ये एक चीज बताओ, ये X% DT% आप तुमने जो बोला कि ये ज्यादा अभी तक स्ट्रेच नहीं है, बराबर है। लेकिन मैंने जो बोला था जी। ऑल सेक्टर्स में 95% है, तो किस लेवल पे तुम कॉशियस हो जाओगे? सर जब भी NSE ऑल सेक्टर जो 90, यानी मोस्टली जो होता है कि 90 के ऊपर जाता है तो होता है क्वेश्चन। लेकिन क्या है कि हाँ अगर पूरे सेक्टर का आप देखो, सो हम्म ऑलमोस्ट 50% सेक्टर अभी भी है, तो मे भी हो सकता है कि सेक्टर रोटेशन हो, ओके। ये पॉसिबिलिटी। सो सॉर्ट ऑफ हाँ थोड़ा करेक्शन हो गया, फिर से सेक्टर यानी क्लियर अपसाइड में है। DT% अभी भी मतलब नहीं हुआ है। सो ये अभी भी पॉसिबल है कि निफ्टी में पुल बैक आया तो नेक्स्ट आउट परफॉर्मर विल बी फ्रॉम दीज सेक्टर्स, ऐसा बोल सकते हैं? पॉसिबल। हाँ सो अभी जो एनालिसिस जो हम लोग करते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए, ये बिकॉज हम लोग जो सिलेक्ट किए हैं ये 0.25%, 1, 2, 3 ऐसे करके। सो ये शॉर्ट टर्म हम्म हम लोग देख रहे हैं। DT% आप देखो यहाँ 0.25 हम मैंने लिया है, ठीक है। हाँ, और वो तो यहाँ डिफॉल्ट ही X% 1% डिफॉल्ट वाले रखा है। डिफॉल्ट एनफ है, ठीक है। हाँ सो इसका काम मोस्टली हो गया। अब हमको समझ में आ गया कि सेक्टर जो आउट परफॉर्म जो कर रहा है, यानी अगर अंडर हम्म परफॉर्म अगर हम देखें। अब ये देखो सबसे इंटरेस्टिंग निफ्टी आईटी है। निफ्टी आईटी हाँ क्या है कि एक तो रैंकिंग स्कोर सबसे ज्यादा है, दूसरा ये -1 में है। इसका मतलब क्या है कि इसमें डबल हम्म टॉप बाई नहीं आया है, करेक्ट। करेक्ट। इन ये कॉलम ऑफ एक्स में है। अब इसका अगर ओके। हम इस पे डबल क्लिक करें ये चार्ट ओपन होगा, हाँ ठीक है। हम्म सो ये क्लियर आपको दिख रहा है कि ये आउट परफॉर्मर है इस पूरे रैली का। हम्म ये सॉर्ट ऑफ करेक्शन है और कॉलम ऑफ एक्स में है, यानी कोई भी डबल टॉप बाई यहां से ये हो सकता है कि ये लीड करे फिर से रैली को, बराबर। ओके। ठीक है, निफ्टी आईटी का। हम्म सो ये या हो गया मेरा सेक्टर एनालिसिस। इसके थ्रू और करते हैं, बाकी सब थोड़ा हम करते हैं लेकिन उसको बहुत ज्यादा डिस्कस अभी नहीं कर पा रहे हैं। हम्म नेक्स्ट जो हम जाते हैं, एक आइडिया लेते हैं टेबल में जाके, और हाँ परफॉर्मेंस टेबल।
ओके। और इसमें निफ्टी 500 में रन करता हूँ। आप जैसे अगर कोई है एफएनओ रन करना चाहे तो एफएनओ कर सकता है, हाँ। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट कर देते हैं। इससे क्या आइडिया रहता है, अब जैसे इसमें डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली है। सो वीकली को हम करेक्ट। शॉर्टलिस्ट करते हैं। वीकली में यानी हम्म। इंडसइंड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एसबीआई, ये सब वीक में ये परफॉर्म किया है, ठीक हाँ। है। अब हम देखते हैं, लेकिन अगर डेली का अगर देखें तो हो सकता है कि जैसे एसबीआई आप देखो, वीक में तो परफॉर्म किया, लेकिन पिछले बार जो 0.25%, बहुत ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया। सो हाँ। इस ये सभी ये स्टॉक्स में अगर कहीं भी फॉलो थ्रू अगर आता है, नेक्स्ट फॉलो थ्रू, सो वो ओके। ध्यान रखना है अपने को। अच्छा। सो इसका आप यहाँ से इंपोर्ट करके, जैसे व्यू रिपोर्ट आप करेंगे यहाँ, हाँ। सो आपको एक्सपोर्ट रिपोर्ट आ जाएगा, तो आपका एक एक्सेल आ जाएगा। सो स्टॉक्स का भी हाँ। आपको मिल जाएगा कि ये सभी स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना है। अभी बराबर। इंटरेस्टिंग जो ये एचडीएफसी एक जो चार्ट जो हमको दिखा, जैसे हाँ। इंटरेस्ट ये 11 और 12%, मंथली में भी ये 22% है। अभी ये क्यों हम्म। एचडीएफसी, इसलिए कि हम उसका चार्ट देखे हुए हैं, इसलिए डिस्कस ये कर हाँ। रहे हैं। अभी जब हाँ। और ये मालूम है कि यहाँ की डेली में ये बहुत ज्यादा कुछ आउट परफॉर्म नहीं किया। सो मैंने एचडीएफसी का ये कैंडल ओपन हुआ, 2 सेकेंड। हम्म। सो अब हम ये प्रोसेस होने के बाद, अब हम जो जाते हैं, जो आप बोलते हैं कि टक टक, जो हाँ। यहाँ एक कोई चार्ट ओपन करते हैं, हाँ। जैसे मान लो कि गोदरेज प्रॉपर्टी हुआ, ये यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एनएसई, और यहाँ पे निफ्टी 500। तो अभी अगर हम हाँ। एफएनओ सेलेक्ट करते हैं हाँ। और यहाँ एक जाके टिक करते हैं, सो क्या हो गया, अब हमको यहाँ से एक एक करके केवल हाँ। नेक्स्ट 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 क्लिक करने का। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। अभी जैसे ये नेक्स्ट किए, अच्छा, अब टक क्या टक होता है, मतलब नेक्स्ट चार्ट मतलब में हम टक। क्या करते हैं। हेलो, हाँ, नेक्स्ट मतलब टक 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 कर रहे हो, मतलब नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं। करेक्ट, हाँ। हाँ। सो अब ये चार्ट में हम क्या देखते हैं, वो थोड़ा डिस्कस कर। अभी ये सबको मालूम है कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट का बॉक्स में हम लोग जो प्राइस होता है उसको बॉक्स में रखते हैं। सो एवरी बॉक्स हम्म। जो है एक इंफॉर्मेशन अपने को बताता है, करेक्ट। करेक्ट। तो अगर ये जो दिख रहा है यानी एक्स, कॉलम ऑफ एक्स है, सो जितना लॉन्ग हाँ। कॉलम ऑफ एक्स है, इसका मतलब इस स्टॉक में मोमेंटम है, और हाँ, किसी भी बुलिश है। टाइप के ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम जरूरी है। अगर जो साइडवेज मूवमेंट है, इसमें अगर आप बाई सेल अगर जाओगे स्टॉक्स का, तो उसमें आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, मोमेंटम चाहिए। अब ये बराबर। अगर हम पहला ही चार्ट देखो अदानी, सो ओपन किए तो हम्म। देख के क्या समझ में आया कि मोमेंटम में है, क्लियर। ये कॉलम ऑफ एक्स, करेक्ट। लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, यानी एक्स ज्यादा प्रिंट है, वो कम प्रिंट है, इसका मतलब बुलिश है, सिंपल। बराबर। ये बार बार जब देखने के बाद, तब अभी इतना जो डिस्कशन हम किए, ये अगर हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें तो समझ में आ जाएगा। ये मुश्किल से 1 सेकंड जाएगा कि हाँ इसमें कुछ है। अब ये हाँ। कॉलम ऑफ एक्स है, अब अगर यहाँ पे मेरा अफोर्डेबल स्टॉप लॉस नहीं है, तो विल वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। या इनफैक्ट इसमें नंबर, एक चीज और, एक ऑब्जर्वेशन जो मैं भी हमेशा देखता हूँ, सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स एक्स ज्यादा है ऐसे नहीं, इवन जो कॉलम एक्स वाले कॉलम है उनका हाइट भी देखो, हर एक कॉलम का हाइट इतना बड़ा है एक्स वाले, और रेड का छोटा है, तो मतलब वो रेड में पुल बैक छोटा और इमीडिएटली बड़ा कॉलम मिलता है एक्स में। तो वही बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर आप इस रैली में देखें, सो वो कम प्रिंट हुआ है, एक्स ज्यादा प्रिंट हुआ है। और एक्स करेक्ट। डिनोट्स क्या करता है, अपसाइड मूव, वो डिनोट करता है डाउन साइड मूव। इसका मतलब हम्म। स्टॉक ऊपर ज्यादा जा रहा है, नीचे कम आ रहा है, करेक्ट। सो करेक्ट। वो रिट्रेसमेंट है, वो ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल है। अभी हाँ। ये हो गया। अभी ये कॉलम ऑफ एक्स जो लंबा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरे लिए ईओडी अफोर्डेबल नहीं है, अगर हमको इंट्राडे ट्रेड करना है, सो ये अगर हम्म। इंट्राडे में कोई ब्रेकआउट है तो हम इसको ट्रेड करेंगे। तो मेरे लिए ये बराबर। अदानी एंटरप्राइज, तो एक एक्सेल मेरा ओपन रहता है, जैसे हम्म। मेरा यहाँ अगर हम करें मैं, सो एवरी डे का आई थिंक हमको लगता है कि ये एक मेरा फोल्डर है, और काफी अच्छा। ईयर्स का एक फोल्डर है इधर। अरे तो बाप रे। एवरी डे का मेरा ये ऐसे ऐसे रहता है कि यहाँ की कौन कौन से स्टॉक्स इसका है, ठीक है। ओके। तो ये मेरा लिस्ट रहता है, और लिखते चलते हैं, ठीक है। और अच्छा। यहाँ से अभी जैसे ये देखो, ये अभी ये जो है अदानी, इमीडिएट समझ में आया कि ये थोड़ा साइडवेज है, ये ब्रेकआउट हुआ है,
यानी रेंज ब्रेकआउट, ये हाँ हाँ अभी, अब हम किसको, अभी अंबुजा सीमेंट को, मेरे लिए ये बुलिश नहीं है लेकिन बेयरिश भी नहीं है, बराबर तो ये मेरे बराबर। लिस्ट में रहेगा नहीं, उस पर रुकने का ही नहीं। अच्छा अच्छा, जो अभी बुलिश ये नहीं है स्टॉक बेरिश मेरे नहीं है, सीधा लिए इमीडिएटली नेक्स्ट टक करो भाई, ऐसा। करेक्ट। अभी जैसे ये अगर ये मेरे काम का नहीं है ना, उसको देखने का भी नहीं, इधर आगे चलने का। ओके अभी ये स्टॉक्स में इमीडिएट समझ में आया कि ये शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा बेरिश दिख रहा है, अगर इसके नीचे तो करेक्ट। ये मेरे बेरिश लिस्ट में आ जाएगा। दूसरा लेकिन एक ये और चीज ये एक मिनट, ये बुलिश भी तो है ना, अभी नेक्स्ट डबल टॉप बाय विल बी अबव एमए, करेक्ट, बुलिश भी हो जाएगा वो। बुलिश भी है, बराबर बुलिश भी हाँ। है। लेकिन अगर हम्म। अगर हम इसको, ये एंकर कॉलम को अगर हम देख रहे हैं कि इसके नीचे अगर आता है कोई डबल बॉटम से, हाँ सो ये एबीसी ब्रेकआउट भी आएगा, करेक्ट। दिख रहा है। हाँ हाँ। सो यहां से एक डाउन साइड मूविंग ओके एवरेज के नीचे ही है, अगर इसके ऊपर करेक्ट। जाएगा तो क्वाड्रुपल बाई आएगा। लेकिन हाँ करंट जो, अगर अगर कल का अगर हम देखो 6 तारीख को कॉलम ऑफ ओ में है, सो अगर अगर ऊपर अगर गया तो ठीक है, ऊपर के लिए तो मेरे पास और बुलिश है पैटर्न, ओके। ठीक है। जैसे अदानी, अगर 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 मार्केट बुलिश ही है तो सबसे पहले हम हम्म। अदानी को प्रेफर करेंगे। हाँ करेक्ट। बट अगर बेरिश, अगर उस दिन अगर मार्केट है तो हम अपोलो को देखेंगे कि ब्रेकआउट आया क्या नीचे, अच्छा ठीक है। इस तरह से। और एक हम्म। एक करके हम और पैटर्न तो आप जितना देखेंगे उतना पैटर्न आपको समझ में आएगा कि हाँ कि ये अब वो तो पैटर्न। तुम्हारा और तुम्हारी आग नजर बैठ गई है तो इमीडिएटली पता चलता है। करेक्ट, तो आप जैसे आप चार्ट में मेरे देख रहे हैं, केवल मूविंग एवरेज एक प्लॉट है और दूसरा कुछ हाँ। नहीं, तो इमीडिएट समझ में आ जाता है कि हाँ कि कौन सा क्या पैटर्न है। हम्म और दो चीज जो 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 हम सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस देते हैं एनालिसिस में, एक तो एंकर हम्म। कॉलम जो मैंने बताया, लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स या लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ, और दूसरा जो देते हैं वो 45 डिग्री, हाँ राइट। कि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, बिकॉज वो ट्रेंड अपने को समझ में आता है। अगर प्राइस 45 हाँ डिग्री के ऊपर है, अभी जैसे एक चार्ट ओपन हम करते हैं, करंट जो चार्ट है एचडीएफसी, आप देखो, ओके। हम्म। अभी ये सब कुछ रिमूव, अभी ये अगर हम देखें तो ये टॉप जो है 2020 का है, जनवरी हाँ। 2020 से, और यहाँ हम्म। टॉप से अगर हम ड्रॉ करें, सो ये रिसेंटली यानी जनवरी से लेके अभी तक ये बिलो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ट्रेड हो रहा था। फर्स्ट टाइम ये हाँ ब्रेकआउट दिया और उसके बाद फॉलो थ्रू दे रहा है। करेक्ट। सो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये चलने का, अगर मार्केट यहां से अगर और ऊपर गया तो एचडीएफसी हो सकता है कि यहां से आउट परफॉर्म करे। बराबर हाँ। सो हम दो चीज को ये देते हैं साथ में, ये 45 डिग्री, और आप देखो एंकर कॉलम भी है। हाँ एंकर सो कॉलम भी। मेरे लिस्ट में एचडीएफसी एकदम हॉट लिस्ट में रहेगा कि बाई में मेरा इनफैक्ट एचडीएफसी। इसमें और एक चीज बताऊं, मतलब मेरे को सिर्फ डाउट हो रहा है एचडीएफसी के चार्ट में। हाँ वो जो मार्च का जो टॉप था ना, ये ऊपर का टॉप, और ये ओके, एकदम जो लो, उसका एंकर पॉइंट देखो, एंकर पॉइंट टॉप टू बॉटम। नहीं नहीं वो नहीं। यानी आपको रिट्रेसमेंट, ये जो होगा रिट्रेसमेंट 61% का रिट्रेसमेंट होगा, अगर आप देखेंगे जैसे ये जो है ना, हाँ करेक्ट। आप अगर हम ले ले रिट्रेसमेंट 61.8%। हाँ वो वही देख, मेरे को वही देखने का था। ठीक है। हाँ, सो ये अब वो ये 61 मेरे के लिए ऊपर लिस्ट गया में चला रहेगा, गया। ये अफोर्डेबल स्टॉप हम्म, लॉस, फॉलो थ्रू, अबव 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, और क्या चाहिए। बराबर है। सो इस तरह से एवरी ठीक है। स्टॉक्स हम जाते हैं, ऐसे टक हाँ टक टक करते करते, सो इमीडिएट अच्छा समझ में आता है ओके। कि अभी जैसे ये एक ही स्टॉक था और फर्मा, इधर अभी कुछ हाँ नहीं होगा, अगर इधर हाँ बाई भी साइडवेज है। करेंगे सेल भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये मेरे लिस्ट में रहेगा ही नहीं। अच्छा एक चीज बोलो, तुमको जी जी कैसे लग रहा है तुम्हारे चार्ट पे? क्योंकि मैंने जो बोला कि कॉल में अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन में तो पहले इंडिकेशन आता है इसलिए। आ, अच्छा ये तो बुलिश है। अभी जी बेरिश नहीं है, बुलिश है चार्ट। हम्म। अगर हम शॉर्ट टर्म का केवल बात करें कि आप देखो ये 45 डिग्री को ये है, इधर से सपोर्ट किया और उसके बाद ये ब्रेकआउट आया है, सो ये करेक्ट। बुलिश ही है। लेकिन
ओके। ऐसा यानी आप बोल सकते हो क्या कि ऑप्शन के चार्ट पे जो बुलिश है ये शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है, बहुत ज्यादा हाँ मतलब बुलिश नहीं, बिकॉज नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। करेक्ट, पॉसिबल, हाँ। बिकॉज ओवरऑल जो ये चार्ट जो है ये क्लियर डाउन ट्रेंड में है। ओके, बराबर है। सो आप ये प्राइस मूवमेंट और ये प्राइस मूवमेंट, सो बहुत ज्यादा हम्म। प्राइस जो है अपसाइड नहीं जा रहा है, बार बार वो नीचे उसको आ रहा है, बराबर है। बट शॉर्ट टर्म में बुलिश है, नो डाउट। ओके। तो इस तरह से एक एक करके सर एनालिसिस जाते हैं। ठीक है। ये हमेशा बहुत लोगों को मैंने बोल के रखा था कि राजू का टक टक इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, तो अच्छा वो आज मौका मिला रघुनाथ के एब्सेंस से तुम्हारा टक टक इंडिकेटर एक्सप्लेन करने का, नहीं तो और कब और मिलता था मॉर्निंग में मौका। जो मोमेंटम लिस्ट, मॉर्निंग में जो मोमेंटम लिस्ट जो हम पहले देते थे वो इसी का ये था, जब एक्सेल जब हम बताते हैं, जैसे इस हाँ तरह हाँ से मेरा एक्सेल रेडी रहता है एवरी डे का, हाँ। कि मेरा ये बाइंग ओके। का है, ये सेल का है। सो इसमें से फिर अच्छा। सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा चार्ट जो काफी अट्रैक्टिव है उसको देते हैं, ओके। तो उसमें से जो जो रिस्क हाँ रिवॉर्ड के हिसाब से सही है। हम्म। हाँ, समझ गया। और ये तुम रोज कितना टाइम लगता है तुमको ये सब करने में? ये मुश्किल से यानी 40 मिनट लगता है, निफ्टी 500। अच्छा, एक्सपीरियंस मतलब ट्रेंड आए है इसलिए 40 मिनट, कोई बिगिनर हो तो उसको 1.5-2 घंटा लगेगा, बराबर है। सो वो स्टार्ट कर सकता है 5-10 स्टॉक से, हाँ दस बराबर है, से उसको पंद्रह पूरा देखने से की बीस जरूरत ही नहीं है। से 25। करेक्ट। हाँ, लेकिन ऑफकोर्स ये भी कर सकता है कि जो सेक्टर अच्छा लग रहा है वो सिर्फ उसी से, जैसे अभी आईटी अच्छा लग रहा है तो सिर्फ आईटी के स्टॉक्स चेक करना, वो वैसे कर सकता है। हाँ वो हो सकता है। अभी हमको थोड़ा आदत हो गया है, तो जब तक निफ्टी 500 नहीं देखते हैं हमको समझ में आता है कि हाँ कि कुछ तो मिसिंग है मेरे एनालिसिस में। अच्छा, ओके। ठीक है। अच्छा, वो आज ये सब समझ लिया कि कैसे करते हो टक टक इंडिकेटर, तो ठीक है, और कुछ नहीं ना? नहीं, बस हो गया। और ओके। आपको अगर कुछ पूछना है तो। नहीं तो मेरे तो सवाल चलते रहेंगे, वो बाद में ऑफिस में भी पूछूंगा। व्यूअर्स के लिए सोच रहा था, ठीक है, मैंने जो पूछना था वो पूछ लिया, अभी मेरे ख्याल से हो गया। ओके देन गाइस, आई थिंक दिस वाज अ टेरिफिक सेशन ऑफ वेरी शॉर्ट सेशन, बट shows how an experience I can do a daily analysis in less than 1 hour. In fact, he says 40 minutes and come up with a list of stocks for the next 1 week. In fact, he does it every day and he comes up with a very short list for the next day. And most of its intraday calls work well. And this is the only thing which it does, nothing else. There is no rocket science. So that is what we wanted to show today, and I hope you liked it. And thank you, Raju, and thank you everyone for being attentive. Thank you, and bye.